ऑनलाइन एक बार आप ट्राई करो इसका ऐप थ्रू लॉगिन करने के एक बार वहाँ पर लाइव पे आया होगा ना। ये तो आ रहा चल रहा है ना, आ रहा है ना। नहीं नहीं आपके है ना इधर। कोर्स के अंदर जाके देखो एक बार रिकॉर्डेड। नहीं आ रहा क्या। हाँ आ रहा है, अभी अभी देखो। आ रहा है रिच। ओके विल गेट स्टार्टेड। कैन गो ऑन म्यूट ऑनलाइन। गेट स्टार्टेड। तो कल हमने मेथड स्टार्ट किया था। व्हाट इज टाइप्स ऑफ मेथड्स के पहले इंट्रोडक्शन देखा था। व्हाट आर मेथड्स दैट आल्सो वी हैव डिस्कस। मेथड का टाइप से था। Now, what simply method is? Method is nothing but a set of instructions or steps to complete a task. That given to कोई task complete करने के लिए जो steps चाहिए that are done inside a method. तो method का जो instructions जो आप that part is called as method definition. We write the method definition. The method का नाम लिखना, input try करना, writing the statement. दूसरा part होता है method is just like kind of a guide, algorithm or
परफॉर्म सर्टेन टास्क, वो डिफाइन किया आपने बस, और जस्ट डिफाइन। अगर वो स्टेप्स आप फॉलो नहीं कर, नॉट एग्जीक्यूट कोई रेसिपी, इट्स ए मैगी रेसिपी है आपके पास, और रेसिपी, बट रेसिपी के अंदर जो स्टेप्स दिए कंप्लीट करोगे तभी मैगी बनेगी, तभी आपका टास्क कंप्लीट। अगर आप वो टास्क कंप्लीट करोगे, इफ यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट स्टेप्स, योर टास्क विल नॉट बी। तो टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉल करना। देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट मेथड डेफिनेशन। मेथड डिफाइन करना मतलब पूरा स्टेप्स का नाम लिखना, पुट, आउटपुट और डिफाइन करना, दैट इज पार्ट ऑफ मेथड। और दूसरा पार्ट होता है मेथड कॉल या इनो। मेथड कॉल करोगे, you will call the method, then only the steps inside the method will be executed. So method is nothing but a group of statements which might accept input, which output. यहाँ पर हमने कुछ syntax देखा था, is the syntax of method. We specify the access specifier जैसे public, private, protected, default. Access modifier जैसे static, access return type, void, int, float, double, ये सारे data types आप method name और optional input parameter. Then public static void main, public is access specifier, static specifier, void is a return type, main is method, these are the input parameter. These are the curly braces which are the body for your method, and then you write the statement. Then based on the input and output, we have different types of methods, method which output. So we have 4 types of methods. इसके अलावा दूसरा कोई type का method which will not accept any input will not provide. Method will accept some input and will provide some output. There might be some methods which will not accept the input but will provide the output. There might be some methods which will accept the input, will not output. These are the 4 types of methods. Then method call कैसे करते हैं ये भी हमने देखा था। Method call करने के लिए आपको method का नाम और फिर उसके अंदर input parameters required है तो that we specify. Now this class contains 2 methods, एक main method और आपका एक add number का method लिखा है. This particular part called as method definition, और देखो आप particular part is called, यहाँ पर आपने एक मेथड डिफाइन करी है, public access specifier, static is a access specifier into the data type. मतलब ये मेथड का एडिशन, मतलब this method will accept the input and will do the addition of numbers and will return the input. This is the statement. Then main method आपने डिफाइन किया और main method से आपने इस particular method को कॉल किया, main method से आपने इस particular method कॉल किया. तो every Java application that there will be at least every Java application have one at least. Main method is the in for your Java application. मतलब मेथड डिफाइन करके कुछ फायदा नहीं है, आपको मेथड डिफाइन होने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कॉल करना, और कॉल कहीं ना कहीं से कर, तो मेन इज द एंट्री पॉइंट काम होता है, बाकी जो कॉल करना। अभी आप क्या करते हो, मेन मेथड से एक दूसरा मेथड कॉल करोगे, उस मेथड से दूसरा कोई और मेथड, तो वी डू द कॉलिंग बट द एंट्री पॉइंट इज एग्जीक्यूशन। बट ये हमने डे 1 पे देखा था, डे बिफोर यस्टरडे। देन हमने कल मेथड्स का टाइप्स देखा था, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं। So we have instance methods and static methods. A method which is created or which is defined without a static modifier, it is called as instance method. और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इस instance method की? We need to have these instance methods in order to perform object specific operation. जैसे आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में आपका बैंक बैलेंस चेक करना, विड्रॉ करना, ट्रांसफर, ये सारी ऑपरेशंस आपके स्पेसिफिक है। To perform that operation, these instance. How do we define this method? Class define करते हो और class के अंदर method define करते हो without using static key. फिर उसके बाद हमने देखा था कि instance method को call कैसे, तो instance method को call करने का सबसे सिंपल तरीका है, आपको यूज करना पड़ता है रेफरेंस वेरिएबल डॉट
मेथड का नाम। स्टैटिक मेथड क्या होता है? स्टैटिक मेथड इज अ मेथड विच इज डिफाइंड यूजिंग, यहाँ पर देखो आप, स्टैटिक मेथड डिफाइन है स्टैटिक की। नाउ व्हाई डू वी नीड दिस पर्टिकुलर स्टैटिक मेथड? अभी ऐसा बहुत बार हो सकता है कि लेट से मुझे कोई ऐसा कॉमन टास्क हो सकता है विच इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। Such tasks we define using static methods. Static methods are used to perform operations or the objects. How to define a static method? We define the class, और class के अंदर आप ये method, तो static return type और put parameters and how to call static method? Method को call कैसे करते हो आप? Method को call करते यूज, पहले क्लास यहाँ पर मेथड डिफाइन करी आपने और क्लास का नाम यूज कर कॉल कर, सिंपल। स्टैटिक मेथड को आप कॉल करोगे यूजिंग क्लास नेम, और इंस्टेंस को कॉल करते हो आप यूजिंग यूजिंग रेफरेंस। परफेक्ट। तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। अभी देखो यहाँ पर दो क्लासेस, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए में दो मेथड है, एक इंस्टेंस मेथड है और एक दूसरी स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड एंड स्टैटिक मेथड। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्लास डिफाइन किया क्लास बी, और उसके अंदर भी एक इंस्टेंस मेथड है और दूसरा स्टैटिक मेथड। तो इस इंस्टेंस मेथड से ये मेथड डेफिनेशन हुआ, दीज आर फोर मेथड्स आर डिफाइंड। क्लास ए में दो मेथड है, क्लास बी में, क्लास बी के मेथड से आप क्या कर रहे हो? क्लास ए के मेथड्स कॉल कर रहे हो। तो void m1, इस मेथड को आप यहाँ पर कॉल कर रहे हो। तो कॉल करने के लिए आपको ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, क्यों? क्योंकि m1 मेथड कॉल करना है तो आपको क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा तभी आप कॉल कर पाओगे। बैंक अकाउंट होगा तभी आप विड्रॉ कर पाओगे, ट्रांसफर कर पाओगे। दैट्स द रीजन यू हैव टू हैव द ऑब्जेक्ट क्लास। तो ए इक्वल टू न्यू था, और यहाँ पर आपने a डॉट m2 method is a static method, so m2 method if you want to call you will call using the class name। सेम चीज यहाँ पर भी आपने दूसरे क्लास की दूसरी स्टैटिक मेथड, ये इंस्टेंस मेथड थी, स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड से भी सेम लॉजिक, देयर इज नो डिफरेंस। आपने यहाँ दूसरी बात, सेम क्लास से आप, सेम क्लास की मेथड है, अभी आपके देखो सेम क्लास की मेथड है, तो वी हैव इंस्टेंस मेथड, योर इंस्टेंस मेथड एक मेथड, और दूसरी है स्टैटिक मेथड। तो आपको यहाँ पर देखो दिस पार्ट, देयर इज नो चेंज, टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट यू गेट रेफरेंस एंड कॉल द इंस्टेंस। और आप इस पर्टिकुलर पार्ट को देखो, स्टैटिक मेथड को आप क्लास नेम से कॉल कर सकते हो, रेफरेंस से भी कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो इन द सेम क्लास, द सेम। ऐसा क्यों? यहाँ पर इंस्टेंस मेथड है, अभी देखो यहाँ पर दिस इज पहले तीन तीन वे में तो सबको आपको रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा और क्लास नेम चाहिए। अभी ये दिस इज द वन एक्सेप्शनल केस कि सेम क्लास की इंस्टेंस मेथड, सेम क्लास की इंस्टेंस मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो सेम क्लास की इंस्टेंस मेथड क्लास की इंस्टेंस दूसरे इंस्टेंस कॉल कर सकते इन द क्लास डायरेक्टली। नाउ लेट से वी हैव थ्री क्लासरूम्स। अगर मुझे अभी लेट से देयर आर थ्री सचिन स्टूडेंट्स इन द ईच वन ऑफ द क्लासरूम, तो मैं डायरेक्टली इस क्लास में अभी बैठा हूँ मैं, तो आई इफ आई से सचिन, तो विच सचिन विल बी डायरेक्टली द सेम क्लास। तो मुझे ऐसे बोला नहीं कि क्लासरूम नंबर 1 सचिन, अगर मुझे सचिन कौन सा वाला चाहिए, क्लासरूम नंबर 2 से, आई विल से क्लासरूम नंबर 2। क्लासरूम नंबर 3 में जो बंदा बनता है उसको मुझे कॉल करना पड़ेगा क्लासरूम नंबर 3। अभी सेम क्लास में, अभी लेट से आई एम सिटिंग इन द सेम क्लास, तो मुझे क्लास नेम एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं है स्टैटिक मेथड, राइट? यहाँ पर भी सेम चीज है। तो इंस्टेंस मेथड ऑफ द सेम क्लास कैन कॉल डायरेक्टली, दे कैन कॉल डायरेक्टली। ठीक, सेम चीज मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पर देखो, आई हैव डिस्कस ऑल ऑफ दिस। तो सेम, अभी कोई इंस्टेंस मेथड होगी कोई एक क्लास की, तो उसे चार जगह से कॉल हो सकता है, हाँ, चार जगह से कॉल हो सकता है। कौन से? कोई एक इंस्टेंस मेथड है कोई एक क्लास, तो चार जगह से कॉल हो सकता है। कौन कौन से बता सकते हो आप मुझे? सेम क्लास इंस्टेंस मेथड, सेम क्लास स्टैटिक मेथड, डिफरेंट क्लास स्टैटिक मेथड। तो आपको बस ये, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है।
बाकी सब में क्या करना है आपको, सब केस में आपको क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, रेफरेंस मिलेगा, रेफरेंस के कॉल करोगे। यहाँ पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या दिस यूज कैन कॉल डायरेक्टली और यू कैन यूज। नाउ सेम चीज, अगर स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड को आप कहाँ कहाँ से कॉल कर सकते हो, सेम क्लास इन सेम क्लास स्टैटिक, डिफरेंट क्लास स्टैटिक मेथड। आप मुझे बताओ सेम क्लास की इंस्टेंस मेथड आपके पास ऑप्शन कैसे कॉल करोगे आप। एक तो क्लास नेम से कॉल कर सकते हो या डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो, इस डॉट से भी कॉल कर सकते हो। सेम क्लास की स्टैटिक मेथड है, आप क्लास नेम का यूज़ करके कॉल कर सकते हो या डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो या रेफरेंस का यूज़ करके भी कॉल कर सकते हो। दूसरे क्लास में डिफरेंट क्लास इंस्टेंस आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप क्लास नेम यूज़ कर सकते हो या रेफरेंस नेम। यहाँ पर भी सेम चीज़, क्लास नेम या, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको यूज़ करना है हमेशा to avoid the ambiguity, how to explicitly write the class। ये सारा डिटेल्स हमने कल पूरा, आई होप यू हैव गॉन थ्रू दिस, ये गो थ्रू किया राइट आपने, यस नो, ये दादा किया या नहीं किया, ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस ऑन क्वेरीज आपको डिफिकल्टी लग रहा है। Any queries? Right? Okay. If no queries, I am creating some structure. I am creating 4 classes और आपको एक मेथड्स कॉल करनी क्लासेस और एक, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं एक रियल टाइम में ऐसे फॉलो होता है, मैं एक क्लास बनाऊंगा, उसका नाम है कोर्स कंट्रोलर। दूसरा क्लास है मेरा कोर्स सर्विस, क्या नाम है, कोर्स सर्विस। तीसरा मेरा क्लास है जिसका नाम है कोर्स डाउ। और यहाँ पर मेरे पास 4 मेथड क्रिएट अपडेट, यहाँ पर भी क्रिएट अपडेट ये बहुत ज़्यादा यूज होने आपको यही, आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते हो तो वहाँ पर भी आपको ये, आपको क्या करना है, कोर्स कंट्रोलर की जो भी मेथड्स है इसकी मेथड्स को, कोर्स सर्विस की मेथड किसकी कॉल मेथड कॉल करेगी, कोर्स आ रहा है, से लिखता हूँ मैं, क्या करना है आपको, कोर्स कंट्रोलर की क्रिएट मेथड से आपको किस मेथड कॉल करनी है, कोर्स सर्विस की क्रिएट मेथड। read method of course control will call the read method of, update method of course controller will call the update method of service। Similarly delete method will call the delete of course। और फिर कोर्स सर्विस की क्रिएट मेथड क्या करेगी, कोर्स डाउ की क्रिएट मेथड कॉल करेगी। रीड मेथड ऑफ कोर्स सर्विस कॉल द रीड मेथड ऑफ डाउ, अपडेट मेथड ऑफ कोर्स सर्विस विल कॉल द अपडेट मेथड ऑफ डाउ, डिलीट मेथड ऑफ कोर्स सर्विस विल कॉल द डिलीट मेथड ऑफ। समझ में आ रहा है।
में आ रहा है? ठीक है। और मैंने एक यहाँ पर now this is one part and I have one class called as now here I will have the main method. Here I will have the which is going to call all of the method. This is the entry. मेरे पास टोटल कितनी मेथड? हर एक क्लास में चार चार मेथड, इसकी चार, इसकी चार, इसकी चार और तो मेरे पास कितनी मेथड्स है? 13। ये बाकी 12 मेथड एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एक कोई एंट्री पॉइंट चाहिए, तो वो एंट्री पॉइंट है मेरा मेन मेथड। से क्या करूंगा मैं? इन चारों मेथड को कॉल करूंगा और ये चारों मेथड, अभी ये क्रिएट यहाँ से कॉल होगी, रीड अपडेट डिलीट, तो ये क्रिएट यहाँ से कॉल होगी, कंट्रोल यहाँ पर रहेगा, यहाँ से ये कॉल होगी और यहाँ गॉट द आइडिया। हमारे पास देखो क्या कॉल करना है, सारी एक्सेप्ट मेन, बाकी सारी इंस्टेंस। आपको आइडिया समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज द आइडिया? सबसे पहले हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है कोर्स डाउ। अब मुझे बताओ मुझे कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे? 12 क्यों? राइट। तो कोर्स कंट्रोलर का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कोर्स सर्विस का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कोर्स डाउ का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट, बार बार ऑब्जेक्ट क्यों? अगर आप मुझे बताओ, सिंपल क्वेश्चन पूछ, अगर आपको ट्रांसफर, विड्रॉ, बैलेंस चेक करना है, कुछ रिचार्ज करना है, तो आपको बार बार ऑब्जेक्ट अकाउंट खोलना पड़ता है एक ही बार? So once your account is open, you can perform withdrawal, transfer, मिनी बैलेंस चेक, ये सारी आप चेक करते हो एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो आप मुझे बताओ एक क्लास की चार मेथड मुझे कॉल करना है, तो मुझे चार बार ऑब्जेक्ट क्यों? एक एक बार भी आपका अकाउंट ओपन होता है तो सारी ऑपरेशन कर पाओगे आप क्या करो, हर एक मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, हर एक मेथड जरूरत नहीं, आपको ऑब्जेक्ट कितना कहाँ पर क्रिएट करना है? विल क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट, राइट। कैसे क्रिएट करना है आई विल टेल। यस, फ्लो समझ में आ रहा है आपको क्या क्या करना है? लेट्स ट्राई टू डेवलप दिस। 'creating a separate page for don't worry we'll go to cover that। तो सबसे पहला मेरा क्लास होगा कोर्स डाउ, तो क्लास क्रिएट करो मैं कोर्स डाउ और इसके अंदर मैं चार मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, void create कोर्स, और यहाँ पर मैं बस प्रिंट कर रहा हूँ कोर्स क्रिएट। ऐसे मेरे पास अपडेट कोर्स, अपडेटेड, मेथड है मेरा कोर्स अपडेट, है दूसरा चार मेथड है।
चारों कैसी मेथड्स है आप देखो, कैसी मेथड्स चारों। इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट अनदर क्लास कॉल्ड एज कोर्स। और यहाँ पर मैं अभी मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पर मैं चारों मेथड एज इट इज यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये लॉजिक नहीं है, लॉजिक बस एक ही एम्प्टी में। सिंपल क्वेश्चन, क्रिएट कोर्स मेथड ऑफ कोर्स सर्विस टू कॉल कोर्स डाउ की मेथड। क्या करना चाहते हैं, कोर्स सर्विस मेथड, कोर्स सर्विस क्लास से क्रिएट कोर्स मेथड आपकी दो क्लासेस, कोर्स सर्विस और कोर्स डाउ। कोर्स सर्विस क्लास की मेथड कौन सी, क्रिएट कोर्स, उसे कौन सी मेथड कॉल करनी है, कोर्स डाउ की क्रिएट। मुझे कोर्स डाउ की ये मेथड कॉल करनी है, कहाँ पर, यहाँ पर। आपके पास क्या ऑप्शन है, कोर्स डाउ क्लास का ऑब्जेक्ट बना, राइट। आप कॉल करोगे कोर्स डाउ डॉट, सेम चीज यहाँ पर भी करोगे आप, यहाँ पर कॉल करोगे आप गेट कोर्स पर। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन, अगर मेरे पास ऐसे हजारों ऑपरेशन, आप हर बार ऑब्जेक्ट नॉट क्रिएट 1000 टाइम, आप क्या करोगे, एक ही बार क्रिएट करो इंस्टेंस क्रिएट। जस्ट डिलीट दिस। हाउ सिंपली वी आर एबल टू कॉल द मेथड। एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका रेफरेंस मिला, और इस रेफरेंस के करके आप सिंपल सेम चीज एक और क्लास क्रिएट करते हैं। ये एक और क्लास क्रिएट करना है, कोर्स कंट्रोलर, नाम है उसका कोर्स कंट्रोलर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी चार मेथड है, यहाँ पर मैं कोर्स सर्विस का ऑब्जेक्ट बना, कोर्स रिफैक्टर करता हूँ, कोर्स है। कोर्स कंट्रोलर से आप क्या कर रहे हो, कोर्स सर्विस की मेथड कॉल कर रहे हो। कोर्स कंट्रोलर से आप क्या कर रहे हो, कोर्स सर्विस की मेथड कॉल कर रहे हो, कोर्स सर्विस डॉट गेट कोर्स। गेट कोर्स से आप क्या कर रहे हो, कोर्स सर्विस की कोर्स डाउ की मेथड। अब मुझे लास्ट में क्या करना है, एक मेन मेथड चाहिए होगा, ये सारी मेथड्स यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कोर्स कंट्रोलर ऑब्जेक्ट बना, कोर्स कंट्रोलर इक्वल, और यहाँ से मैं कॉल करूँ कोर्स कंट्रोलर डॉट गेट कोर्स, अपडेट कोर्स, रीड कोर्स, और ठीक। लेट्स ट्राई टू डिबग दिस, ऑल ऑफ दिस। यहाँ से कंट्रोल जाएगा इस कोर्स सर्विस के पास, सारे एक एक डिबग आपको दिखा देता हूँ, दैट यू आइडिया। आप पूछोगे इतने सारे क्लासेस क्यों, क्लास व्हाई वी हैव created these many? Simple reason is whenever you develop real time projects you will have a lot of logic, a lot of tasks। तो आप एक ही क्लास नहीं, there will be thousands of people working। आप सोचो बड़ा प्रोजेक्ट मतलब बहुत बड़ा लॉजिक, एक बंदा नहीं डेवलप करता, देयर आर हंड्रेड्स और। तो आप मुझे बताओ, ये सारे लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं,
डेवलप करेंगे। तो व्हाट वी विल डू, विल क्रिएट लॉट ऑफ क्लास। और क्लासेस कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें कौन से मेथड्स लिखोगे आप, लॉजिकली रिलेटेड। कोई लॉगिन फंक्शनलिटी का काम करेगा, लॉग आउट के लिए काम करेगा, कोई सर अपडेशन के लिए कोई काम करेगा। बहुत सारे ऐसे आपकी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोग काम करें। मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल मेथड्स, फाइनली क्या होता है, ये सारा मिलके एक एक होलसम प्रोडक्ट आपका बन जाता है। तो लॉट ऑफ पीपल विल वर्क एंड दे विल इंटीग्रेट दिस। और जैसे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, ये सारा, अब जैसे आप अमेजोन पे प्रोडक्ट को बाई करते हैं, तो प्रोडक्ट का लिस्टिंग होना, प्रोडक्ट को बाय करना, प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड करना, बहुत बड़ी सिस्टम। ये सब क्या होता है, एक दूसरे को इंटर, ऑल ऑफ दीज आर इंटर, राइट। तो इन सबको आपको अलग अलग क्लासेस में और लॉट ऑफ, तो आपको डरना नहीं, इतने सारे क्लासेस देख, वेरी इजी, जस्ट अ बिगिनिंग यू आर डूइंग। तो आपको बहुत सारी मतलब प्रैक्टिस हो। नाउ लेट्स सी दिस। अब मुझे क्या करना है, देखो आपका कंट्रोल कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऐप क्लास से कोर्स कंट्रोल की मेथड कॉल कर रहे हो आप, कोर्स कंट्रोलर से आप कोर्स सर्विस कॉल कर रहे हो, और कोर्स सर्विस से कोर्स डाउ की मेथड, फोर क्लासेस, ऐप डाउ, ऐप जावा, कोर्स कंट्रोलर, कोर्स कोर्स। लेट्स स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। तो मेन मेथड कॉल हुआ, मेन मेथड सबसे पहले कौन सी मेथड कॉल करना है, कोर्स कंट्रोलर की कौन सी मेथड, कोर्स क्रिएट कोर्स। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, यस। कोर्स कंट्रोल यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट हुआ, कोर्स, कोर्स कंट्रोल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसका रेफरेंस मिला, उसका रेफरेंस यूज करके आप मेथड कॉल कर रहे हो, कोर्स कंट्रोलर डॉट गेट कोर्स। कंट्रोल कहाँ पर आया, कोर्स कंट्रोल की मेथड पर। अभी कोर्स कंट्रोल की मेथड पर क्या हो रहा है, कोर्स कंट्रोल की मेथड क्या कर रही है, कोर्स सर्विस की गेट कोर्स मेथड कॉल हो रही है, और फिर कोर्स सर्विस की मेथड क्या कर रही है, कोर्स डाउ की क्रिएट कोर्स मेथड कॉल, और फाइनली आप यहाँ पर लॉजिक पर प्रिंट होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड एज, अभी आप ये देख पा रहे हो, ये जो दिख रहा है ये सारा चीज, you see this is called as method execution stack। तो आपका मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ यहाँ पर, मेन मेथड ने कॉल किया कोर्स कंट्रोलर की क्रिएट कोर्स, कोर्स कंट्रोलर से आपने कॉल किया कोर्स सर्विस की मेथड, कोर्स सर्विस से आपने कॉल किया कोर्स डाउन। अब ये मेथड कंप्लीट होगी तो दिस विल बी डिलीटेड स्टैक, डिलीटेड, और कोर्स सर्विस भी डिलीट होगी, कोर्स कंट्रोल की क्रिएट कोर्स भी डिलीट होगी, और कंट्रोल फिर से वापस आएगा कोर्स क्रिएटेड, कोर्स ऐप से कोर्स कंट्रोलर, कोर्स कंट्रोलर से सर्विस, कोर्स सर्विस से कोर्स। एक फ्लो देखो आप, ठीक। फिर से अभी दूसरी मेथड कॉल हो रही कौन सी, अपडेट। ऐप क्लास से आपने कोर्स कंट्रोलर की अपडेट कोर्स मेथड कॉल करी, कंट्रोलर से फिर सर्विस की मेथड कॉल होगी, सर्विस से डाउ की मेथड कॉल होगी, और फाइनली यहाँ पर ये कोर्स प्रिंट होगा। फिर से कंट्रोल वापस आएगा कोर्स सर्विस से कोर्स कंट्रोलर, कोर्स से ऐप क्लास मेन, फिर यहाँ से कंट्रोल, फिर से वो दो लाइनें खत्म होगी, फिर यहाँ से डिलीट कोर्स का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, डिलीट कोर्स कंट्रोल के पास आया, कंट्रोल ने फिर सर्विस कॉल किया, सर्विस से डाउ कॉल किया, कोर्स डाउ कंप्लीट हो गया, फिर कोर्स सर्विस, कंट्रोलर और ऐप, फिर आपका कोर्स क्रिएट अपडेट, तीनों मेथड कंप्लीट हो गए। उसके बाद रीड कोर्स आपने कॉल किया कंट्रोलर का, कंट्रोलर सर्विस से, फाइनली आपका डाउ एग्जीक्यूट हो गया, control will come back to service controller and so or all the methods are, so this flow you have to practice, you have to understand कि कैसे कंट्रोल, बस यही आप यूज इन द रियल टाइम प्रोजेक्ट, दिस इज हाउ फ्लो विल, समझ में आ रहा है, इज वन रियल टाइम यूज केस इन ऑल द प्रोजेक्ट।
Any queries? Clear with this? Just practice this. Now, I am creating a simple another app. अब मुझे क्या करना है, मैं एक एप्लीकेशन बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। प्रोडक्ट मैनेजमेंट मतलब तो से कुछ इनपुट एक्सेप्ट करेंगे। इससे मुझे 10 प्रोडक्ट का डिटेल्स है, 10 प्रोडक्ट का डिटेल यूजर से एक्सेप्ट, और उसे क्या करना है, दूसरी एक मेथड से प्रोडक्ट सर्विस नाम का एक कोई कंट्रोलर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक, द क्लास, इस क्लास में मेरे पास एक मेथड है ऐड प्रोडक्ट। अब मुझे इस मेथड को क्या पास करना है, अभी मुझे बताओ ये मेथड को कैसे कॉल करूं मैं, हाउ डू आई कॉल दिस मेथड फ्रॉम दिस क्लास? सिंपल है। कौन सी मेथड कॉल करनी है? मेन मेथड से मुझे ऐड प्रोडक्ट कॉल करनी है। कैसे कॉल करोगे आप? बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट कंट्रोलर इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। ये क्रिएट हुआ, यस, कॉल दिस प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर प्रिंट करूंगा प्रोडक्ट एडेड। अब मुझे प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मुझे कुछ इनपुट चाहिए होगा। क्या क्या इनपुट हो सकता है? यूजर से इनपुट मुझे, मेरे पास प्रोडक्ट आईडी हो सकता है, फिर क्या क्या डिटेल्स हो सकता है, प्रोडक्ट नेम हो सकता है, प्रोडक्ट प्राइस हो सकता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो सकता है। इतनी सारी डिटेल्स मुझे यूज़र से एक्सेप्ट। प्रोडक्ट आईडी के बाद प्रोडक्ट क्वांटिटी आप बोल सकते हैं। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ, अब मुझे ये डिटेल्स यूज़र से एक्सेप्ट। लेट्स ट्राई टू एक्सेप्ट दिस इन्फॉर्मेशन। नाउ वी विल आस्क यूज़र फॉर द प्रोडक्ट, तो डिटेल्स एक्सेप्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्कैनर, द स्कैनर। स्कैनर डॉट इंट, ये रहेगा आपका। सिमिलरली आई विल एक्सेप्ट प्रोडक्ट, I will accept the price, आपको मैं बहुत बड़ा अभी पॉइंट समझने जा रहा हूँ, फोकस ऑन दिस। ये 100% यही यूज होता है, तो प्रोजेक्ट में काम करोगे आपको यही यूज। आई विल टेल यू द व्हाट इज द पेन पॉइंट नाउ। प्रोडक्ट प्राइस आपने यहाँ पर एक्सेप्ट किया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए, प्रोडक्ट, ठीक, और प्रोडक्ट क्वांटिटी। ऐसी हजारों फील्ड्स हो सकती है। टेल यू देयर कैन बी एन नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक, आई हैव एक्सेप्टेड ऑल ऑफ दिस। अब मुझे क्या करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर मेथड को
पास कर प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट। नाउ सिंपली सारा मैंने एक्सेप्ट करा और ये सारी डिटेल्स मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा। जस्ट प्रिंट ऑल ऑफ दीज डिटेल्स, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट। ठीक, आई हैव जस्ट क्रिएटेड वन मेथड। ऐसे मेरे पास हजारों मेथड। अभी मैं एक और मेथड क्रिएट करता हूँ, एक और क्लास क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर्विस। क्या करूँगा अभी, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर पास करूँगा, पास दिस इंफॉर्मेशन दिस पर्टिकुलर। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस इक्वल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सर्विस डॉट, फिर प्रोडक्ट सर्विस में जस्ट सिंपली यू माइट फील कि बहुत सारा कोड है, बट दिस इज इजी, डोंट वरी। और मैं एक और क्लास यहाँ पर बनाऊंगा, है प्रोडक्ट। जैसे वही दिशा में जा रहे, ऐप कंट्रोलर सर्विस। ठीक है, ऐप क्लास से हम कॉल करेंगे ऐड प्रोडक्ट ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर से हम कॉल करेंगे प्रोडक्ट सर्विस ऑफ, और यहाँ से हम कॉल करेंगे प्रोडक्ट, कॉल होगा प्रोडक्ट। नाउ सी वंस अगेन, ऐप इज कॉलिंग प्रोडक्ट कंट्रोलर ऐड प्रोडक्ट मेथड, controller is calling service add product, product service is calling DAO add product, और फाइनली हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्रोडक्ट। नाउ वी आर राइटिंग लॉट ऑफ कोड है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ऐसे कॉल होगी ऐड प्रोडक्ट से जाएगा, दूसरी वाली ऐड प्रोडक्ट सर्विस से जाएगा भी। लेट्स वर्क दिस। Now, whatever the amount of time you want to spend on this two use case, time आपके just try to uh, understand the flow, कैसे method कॉल हो रही है। यही सिनारियोस आप हर कोई प्रोजेक्ट टाइम ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, कंट्रोलर से सर्विस, सर्विस से डाओ, और भी बिटवीन लेयर हो सकते हैं, लेकिन यही यहाँ पर देखो, इंटर दी प्रोडक्ट आईडी 101 के बाद हम नाम सेट करते हैं लैपटॉप, और प्रोडक्ट प्राइस विल एक्सेप्ट एज आई, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन,
Next, product quantity. Plug input this. One. Stop. Quantity. ये सारी इंफॉर्मेशन हम कहाँ पास कर रहे हैं अभी? प्रोडक्ट कंट्रोलर की ऐड प्रोडक्ट मेथड को। कंट्रोल वहां पर जाएगा, ऐड प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोलर कॉल कर रही है सर्विस की प्रोडक्ट में ऐड प्रोडक्ट, फिर सर्विस किसकी कॉल कर रही है? डाउ की। और यहाँ पर फाइनली डिटेल्स प्रिंट हो रहा है। ठीक, सारी डिटेल्स पर प्रिंट हो रही है। नाउ इफ यू सी हियर, अभी ऐसा हमारा फ्लो हंड्रेड्स ऑफ लेयर हो सकता है। अभी तो मैंने बस 3 ही लेयर लिया है, कंट्रोलर, ऐप, कंट्रोलर, सर्विस, डाउ। अगर मेरे ऐसे 100 लेयर्स हैं, आप यहाँ पर देखो कि वेरिएबल्स कितने। अगर मेरे पास ऐसे 100 वेरिएबल्स है, मेरा प्रॉब्लम आपको समझाने का ये टारगेट है। अगर मेथड 100 इनपुट पैरामीटर आप ऐसे भेजो, अगर लेट से आप अमेजोन से आप कुछ 100 प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हो, आपको कैसे मिलते हैं? एक एक मिलता है, एक बॉक्स के अंदर मिलता है, साथ में मिलता है, राइट? तो आप ये एक एक प्रोडक्ट क्यों भेज, एक एक डेटा क्यों भेज? अगर आपको एक मेथड से दूसरे मेथड से 1000 फील्ड भेज, आप एक ही कैसे भेजोगे? नॉट द प्रॉपर वे। आप क्या करोगे? ऐसे हजारों फील्ड हो, तो आप क्या करो, ये जो सारी फील्ड है उसको एक कंटेनर ऑब्जेक्ट में रख, ऑब्जेक्ट दे दो। लेट से मुझे, मैं लेट से कोई 1000 पिन का बॉक्स मांगे, मेरे पास ऑप्शन क्या है? एक एक दे दो। दूसरा ऑप्शन क्या है? वो सारे में एक कंटेनर में रखो, एक बॉक्स में रखो और बॉक्स भेजो। ईजी है। कंटेनर में हम वही करेंगे। क्या करेंगे? ये जो सारी फील्ड है उसको हम एक कंटेनर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट्स में से हम रीड, राइट? लेट्स डू दैट। ये आपको प्रोग्राम ऐसे रखना है, ये आई विल क्रिएट वन मोर। I will, what I will do, I will create one more, will say modify, ये प्रोडक्ट ऐप मॉडिफाई हम चेंज कर, तो ऐसे ही रखने देते हैं, आपको पता चलेगा व्हाट इज द। लेट्स सी दिस। नाउ गो टू ऐप क्लास, और यहाँ पर जो भी आप इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हो, इसको क्या करो, आप एक ऑब्जेक्ट में फाइंड करो। तो मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रोडक्ट, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेप्ट करनी है? प्रोडक्ट आईडी, स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और प्रोडक्ट। अब देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन से, मतलब आपका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार में आप दे दोगे, तो इसके लिए मैं कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। डोंट वरी, ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होगा। आई एम जस्ट नॉट वरी अबाउट दैट, वी आर गोइंग टू लर्न लेटर। अभी के लिए समझो ये मेथड जैसा ही कुछ। हाँ, तो व्हाट वी विल डू, विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ
दिस क्लास न्यू प्रोडक्ट, और इसके अंदर जो भी डिटेल्स आपको फिल कर, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, प्रोडक्ट। अब क्या करना है आपको, ये सब कुछ यहाँ पर फिट हो गया। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पर देना है आपको प्रोडक्ट, यहाँ पर भी सब करोगे, फिर प्रोडक्ट। हाउ सिंप्लीफाइड यू आर एबल, परफेक्ट। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस रेफरेंस के अंदर है। तो आप बस आपको क्या करना है, रेफरेंस डॉट प्रोडक्ट आईडी, रेफरेंस डॉट प्रोडक्ट नेम, रेफरेंस डॉट प्रोडक्ट प्राइस, रेफरेंस डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस डॉट कौन, गो बैक ऐप क्लास में आपने क्या किया, देखो यहाँ पर आपने सबसे पहले कंट्रोलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि हमें इस क्लास की मेथड कॉल करनी है, इसलिए हमने उसका ऑब्जेक्ट। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपने एक्सेप्ट करी, प्रोडक्ट आईडी, प्राइस, क्वांटिटी, और उसके बाद आपने क्या किया, इस सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोडक्ट नाम के ऑब्जेक्ट में फिल कर दिया, मतलब आपने एक बॉक्स क्रिएट किया। वो ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, कहाँ पर भेजा, इस पर्टिकुलर ये मेथड के पास भेज दिया आपने कंट्रोलर की। इसने फिर आगे क्या किया, आपका मेथड कितना शॉर्ट हुआ, देखो आप, आपका मेथड कितना शॉर्ट, पहले इतना बड़ा था, अभी कितना छोटा। इसके अंदर आप हजारों फील्ड डाल सकते हो, क्या कर सकते हो आप, इसके अंदर आप हजारों फील्ड डालना चाहिए, आपका मेथड इतना ट्रेनर। और यहाँ से फिर आपने कॉल किया सर्विस की ऐड प्रोडक्ट, सर्विस की ऐड प्रोडक्ट से आपने कॉल किया डाउ की प्रोडक्ट, और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपने क्या कर दिया, बस आपने क्या किया, एक एक फील्ड वहाँ से वो कंटेन, दैट्स इट, और फाइनली आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। लेट मी डिबग दिस, into the product ID I'm saying 102, product name let's say mobile, product input message, thing name let's say while price, product description, Android phone, 10। अब देखो ये सारा डिटेल्स, आपका डिटेल्स कहाँ पर स्टोर्ड है, आपकी इस सब कुछ आपने जो हाउ कंटेनर ऑब्जेक्ट इस, अब आगे भी कंट्रोल जाएगा ऐप से कंट्रोलर में, और कंट्रोलर से कंट्रोल जाएगा सर्विस, सर्विस से जाएगा डाउ में, और डाउ में आप क्या कर रहे हो, इस प्रोडक्ट से यू आर प्रिंटिंग द डिटेल्स, यहाँ पर देखो इस प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी, एंड योर प्रोडक्ट डाउ मेथड इज कम, सर्विस में कंट्रोल मेथड इज कम, ऐप नाउ
spend as much as time possible. आपको ये दोनों सिनेरियो, टाइम है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो यू आर नाउ, अगर ये नहीं समझ में आया स्ट्रगल लॉट। और तो हमने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम दिया है, और टाइम से हम यही पर और फोकस। ठीक है, ज़्यादा क्लियर है? ओके, दिस इज द यूज केस वी टॉक्ड अबाउट। Now, so we talked about variables, we talked about methods also. The next component we have block as also. Next thing is constructor, के बाद block। बाकी तो फिर तो नेस्टेड क्लासेस। आपको दो चीज सीखना, अभी कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। अभी मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक, तीनों में आपको देखो, आपको तीनों में मैं डिजाइन करके दिखाता हूँ हाउ मेथड्स लुक। मेथड क्या क्या सिंटेक्स का? अब एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हो, क्या लिखते हो? एक्सेस स्पेसिफायर। आप ये क्लास डिफाइन करते हो, द क्लास इज ऐप, तो इसके अंदर आप कोई मेथड लिखते void m1, दिस इज योर मेथड। कंस्ट्रक्टर क्या करते हो आप? कंस्ट्रक्टर इज आल्सो काइंड ऑफ अ मेथड। एग्जाम्पल, लेकिन इसमें क्या आपको याद रखना है? कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर हैज अ सेम नेम एज ऑफ योर। और ब्लॉक सीधा सीधा ऐसे होता है, टू रिमूव एवरीथिंग। आपका क्लास बना और ब्लॉक कैसे बनेगा? दिस इज ब्लॉक स्टेटमेंट। दिस इज योर फर्स्ट इज मेथड or constructor. So can you see these are mini versions of your method only? There are mini versions of, यहाँ से मेथड में से क्या रिमूव कर, आपका मेथड का मॉडिफायर रिमूव कर दिया है। यहाँ पर मॉडिफायर नहीं है, उसके बाद क्या नहीं है? रिटर्न टाइप नहीं है, उसके बाद व्हाट इज कंपनी नेम शुड बी इक्वल टू, और यहाँ से देखो और यहाँ पर क्या क्या रिमूव कर दिया, यहाँ पर क्या क्या नहीं है? यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं, फिर नेम भी नहीं। अभी ये दोनों को मैं मतलब अभी विल टॉक अबाउट द ब्लॉक आल्सो। कंस्ट्रक्टर इज आल्सो काइंड ऑफ मेथड, काइंड ऑफ अ मेथड। So why it is also, it is kind of a special method, it is kind of a special method which is having same name as of your class name. If you see here method name and class name, और also यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर दो चीज नहीं, मॉडिफायर और रिटर्न टाइप। क्या नहीं है? मॉडिफायर, मॉडिफायर मतलब स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, ऐसा कोई मॉडिफायर नहीं है। और दूसरा यहाँ पर क्या है? आपको रिटर्न टाइप भी नहीं। तीसरा कंपल्शन क्या है आपका? क्लास का नाम और मेथड का नाम से। These things you have to remember.
Constructor is also a special type of method. It has same name as of your class name. No return type, no access. Return type not even void. Void भी नहीं. Void मतलब होता है does not return anything. But constructor को कुछ भी नहीं लिख सकते आप. Not, that is nothing. Constructor. अभी आप बोलोगे इसका क्या यूज है, मेथड का क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ मेथड? फंक्शन कैरी आउट करना, कुछ तो टास्क कंप्लीट करना है. वी राइट द मेथड टू कंप्लीट सम टास्क. तो आई टोल्ड यू कंस्ट्रक्टर इज आल्सो काइंड ऑफ अ टास्क, इज अ काइंड ऑफ अ मेथड. उसका क्या काम होता है? तो उसका काम होता है, तो आप कंस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना. क्या काम होता है का? कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट और क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट होगा तभी बाकी सारी चीजें अवेलेबल है आपके पास. ऑब्जेक्ट होगा तभी आपके पास इंस्टेंस वेरिएबल्स है, थ्रेड्स है. आपका अकाउंट होगा तभी आप बैंक में ऑपरेशंस कर पाओगे. आपका डेटा होगा वहां पर आपकी ऑपरेशंस परफॉर्म कर. कब? जब आपका ऑब्जेक्ट होगा तब. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम किसका है? कंस्ट्रक्टर. सो कंस्ट्रक्टर इज द ऑब्जेक्ट. का काम क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना. अभी आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का ऑप्शन है. एक तो डमी वैल्यूज के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, या कोई डिफॉल्ट वैल्यू के साथ कर सकते हो, या यूजर डिफाइंड कस्टम वैल्यूज के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट. दीज आर द मल्टीपल ऑप्शंस. एग्जांपल, अभी मतलब आपका जब अकाउंट ओपन होता होगा तो बाय डिफॉल्ट अकाउंट ओपन होता है, मतलब देयर इज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट. तो देयर विल बी सम डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एवरी अकाउंट नंबर, अकाउंट सब सारी नल नल या जीरो जीरो कुछ डिफॉल्ट वैल्यू. नाउ देयर इज अनदर ऑप्शन. अकाउंट ओपन होगा आपके डिटेल के साथ, आपका एक्चुअल नाम होगा, फिर आपका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, सारी डिटेल्स होगी. तो वो हो गया यूजर डिफाइंड वैल्यूज के साथ ऑब्जेक्ट. तो कंस्ट्रक्टर का काम होता है डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना. मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब क्या? सिंपल. कैन यू टेल मी व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन? परफेक्ट. इस ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ फ्री स्पेस एलोकेट. तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, मतलब मेमोरी स्पेस एलोकेट. इस चीज को मेमोरी स्पेस, जो भी वेरिएबल्स. लेट से आपका बैंक अकाउंट, लेट से कोई बैंक अकाउंट है, अकाउंट नंबर होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. तो अगर आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, मतलब उन फील्ड्स को मेमोरी एलोकेट होना, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ स्टोर होता होगा. तो डेटा कौन सा हो सकता है? डमी डेटा हो सकता है, या कुछ आप डेटा दे सकते हो, एग्जैक्ट डेटा जो भी चाहिए. तो दैट इज नथिंग बट मेमोरी. ये करने का काम होता है. कंस्ट्रक्टर इज आल्सो स्पेशल टाइप ऑफ मेथड हु क्रिएट द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी बाकी सारी फंक्शंस आप कर पाओगे. तो कंस्ट्रक्टर कंपलसरी है. विदाउट कंस्ट्रक्टर यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू नीड अ कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट. कंस्ट्रक्टर का यूज होता है आपका ऑब्जेक्ट. व्हाट इज एन कंस्ट्रक्टर? Constructor is a special type of method which has same name as of your class name, does not have return type, does not have access modifier. Right? क्या क्या तीन चीज आपको याद रखना है? Same name as of your class name, no return type, and no access modifier. Remember, there will be hundreds of questions on. They will ask you, can we make constructor static? Can we make constructor abstract? Can we make final? Answer is no. Why? Because no access modifiers are allowed for the constructor. Can a constructor return a value? Constructor do not have the return type. Can we have a constructor name other than the class name? Constructor name must be same as of your this company. Right? So what is a constructor? Constructor is an special type of method which has same name as of your class name, which has no return type, no access one void also. Constructor का use क्या होता है? Use constructor to create an, right? What are the different types of constructor? We have three types of constructor. कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना. ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब मेमोरी करना. मेमोरी एलोकेट करना मतलब वहां पर कुछ ना कुछ डेटा रखना.
तो डेटा कौन सा टाइप हो सकता है, डमी डेटा हो सकता है विच इज डिफाइंड बाय द कंपाइलर, या आप जो चाहते हो वो डमी डेटा रख सकते हो, या आप चाहते हो कि एक्चुअल डेटा रखो। आपके पास तीन ऑप्शन डेटा वहां पर रखने का। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? नाउ यू वांट टू स्टोर द डेटा, तो आपके पास तीन ऑप्शन, क्या तीन ऑप्शन है आपके पास? डमी डेटा बाय कंपाइलर, जो कंपाइलर देगा वो डमी डेटा वहां पर रखो। दूसरा, डमी डेटा बाय डेवलपर, आप जो दे सकते हो वो डमी डेटा भी वहां पर। और तीसरा ऑप्शन है एक्चुअल डेटा, मतलब एक्चुअल डेटा वहां पर स्टोर। आपके पास तीन ऑप्शन है, मतलब ये हो ऑप्शन क्रिएट दीज मीनिंग। आपके पास इट्स अ कंस्ट्रक्टर, वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। अगर आप चाहते हो कि डमी डेटा कंपाइलर सेट करे, तो आपके पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसका नाम है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या नाम है उसका? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर कौन सा डेटा रहेगा? डमी डेटा विच इज बाय द कंपाइलर। दूसरा होता है आपका जीरो पैरामीटराइज, उसके अंदर आप वैल्यू सेट कर सकते, ये आपका दूसरा टाइप होगा। तीसरा है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आपको कोई थ्योरेटिकली या कोई टेक्निकल पर्सन पूछता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर, टेल दैट so using default constructor we can initialize। what is the use of constructor? create an object। creating an object मतलब मेमोरी स्पेस एलोकेट करना, तो उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है उसको मेमोरी इनिशियलाइज करना, मतलब ऑब्जेक्ट। so if you want to initialize an object with dummy data value by the compiler, we go with the default constructor. If you want to initialize an object or create an object with the dummy data by the developer, then you go with the zero parameter। and if you want to set the actual data, एक्चुअल डेटा मतलब जो भी एक्चुअल डेटा होता है उसके साथ सेट करना है, तो आप यूज करते हो पैरामीटराइज। तो यहाँ पर दोनों देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज प्रोवाइडेड बाय दी जावा कंपाइलर, zero parameterized constructor and parameterized constructor are provided by the developer। these two are provided by developer। डेवलपर को लिखना पड़ता है, एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडेड बाय compiler। टॉक अबाउट दिस। So what is the difference between all of these three? आपको देख के समझ में आ रहा होगा what is the difference। Syntax will talk about, but आपको theoretically या conceptually आपको समझ में आ रहा होगा what is the difference। ठीक, so let's conclude this। So what is an constructor? It is an constructor। Constructor is a special type of method whose name is same as your class name, which does not have return type, does not have access modifier, right? Why do we need constructor? Create an object or initialize an object or initialize an variables, initialize an instance variable। Then what are the different types of constructors? We have default constructor, zero parameterized constructor and parameterized constructor। What is the use of that? What is the use of zero parameter default constructor? To initialize an object with dummy data provided by the compiler। Why to use zero parameterized constructor? To initialize an object with dummy data provided by the developer। Why to use parameterized constructor? To initialize an object with actual values, we go with the parameterized। Yeah. Okay.
So with that, we will stop today. Go through all the scenario we have discussed. Is very much important. जैसे आपका ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, then it is very much useful for you guys also and for me also. कि बाकी सारा एक्सप्लेन बहुत इसके ना ज़्यादा आप इसके ऊपर मेहनत करोगे क्लास ऑब्जेक्ट और क्लास कम, मेरा उतना टाइम सेव होगा और आपको भी बहुत ईजी है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग एज मेनी एज आवर्स पॉसिबल इनटू दिस. दैट्स परफेक्टली फाइन. कल हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे और साथ के साथ ब्लॉक्स भी एज वेल एज टाइम परमिट करता है तो हम नेस्टेड क्लासेस टुमारो या नेक्स्ट क्लास में हम. ठीक है. दैट वी विल स्टॉप. क्लास अभी यहाँ पर रिकॉर्ड होके भी आ जाएगी. What we have seen today, methods, app and ये सही है. ओके. चलो ऑनलाइन एनी क्वेश्चन.